Hello physics wala soldiers, today we are going to discuss some topic of aptitude in this video. Let me tell you myself Amulya Ratan and I am the aptitude trainer for GATE and ESC. From past 16 years I am teaching the students in various competitive exam for aptitude part. So today in this video we are going to discuss something about simple interest and compound interest. Let me tell you, here we won't be discussing the complete topic, simple interest, compound interest, but I'll give you some hint what exactly is the reason why the simple interest, compound interest topic was brought into aptitude. Let us understand there is a difference between maths and aptitude. If maths and aptitude both are same, no doubt we won't keep a separate name aptitude. Maths, it is based on formula. Aptitude, it is completely based on logical thinking. So here simple interest, compound interest, it is totally based on formula. Then why it was brought into the part aptitude? What is that logical approach? In today's video we'll understand, and we will even understand that with formula, if you can get the answer in 1 minute, without formula, just by using your logical thinking, just by using the aptitude, you can get the answer in 20 to 30 seconds. So this totally depends on how good you are at aptitude. So let us understand this topic, simple interest and compound interest. So let me remind you, my dear friends, you are most welcome to this GATE wala batch, that is Drona batch. Now this simple interest, compound interest, first of all we have to understand what is this word interest. क्या है ये word interest? What is interest? जब भी आप किसी मनी लेंडर से, किसी बैंक से लोन लेते हो, whenever you go to any money lender, any bank for the loan, and after that when you go to repay them back, जब आप उसे वापस करने जाते हो, something extra excessive you have to pay. That extra excessive itself is called as interest, if I am not wrong. Am I right? जब हम लोग किसी मनी लेंडर से या बैंक से लोन उठाते हैं और उसे वापस करने जाते हैं, तो जो पैसा हमने लिया है उसके बाद एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं वह एक्स्ट्रा एक्सेसिव ही इंटरेस्ट है. नाउ ये जो आपने पैसा लोन लिया था, दैट विल बी कॉल्ड एज हियर द टर्म एज प्रिंसिपल. ओके, एंड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूरा मिला के जो आप वापस कर रहे हो, मनी लेंडर को या बैंक को रिटर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट. दैट विल बी कॉल्ड एज अमाउंट. सो principal plus interest is the amount. This everyone knows. Anyhow, these formulas also everyone knows, but we are trying to understand what is the logical approach, why this topic was brought into aptitude. तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं why interest. ये interest क्यों लगता है, क्यों एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़ते हैं. When I ask why interest, जैसे मान लीजिए A is one person, he is taking 100 rupees from me for 1 month. अब 1 महीने के लिए इन्होंने मुझसे 100 रुपए लिया, 1 महीने बाद ये मुझे 100 रुपए वापस करेंगे. वाई इंटरेस्ट, वाई एक्सेसिव, एक्स्ट्रा पैसे क्यों देना है. तो इस क्वेश्चन के लिए जब मैं पूछता हूं वाई इंटरेस्ट, अलग अलग लोगों का अलग अलग रिप्लाई आता है. कुछ लोग बोलते हैं सर देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ मनी इन द मार्केट, मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है या घटती जाती है, इसीलिए वो ज्यादा पैसे लेते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर, एक्चुअली क्या है, ये पैसा अगर बिजनेस में लगाते तो प्रॉफिट होता. माय डियर फ्रेंड, मनी का जो फ्लक्चुएशन है मार्केट में, उस बेस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है. और अगर ये 100 रुपए में अगर प्रॉफिट होता, 100 रुपए का बिजनेस अगर मैं करूं, नॉर्मली 100 रुपए का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शेयर में मैंने लगाया, हो सकता है मुझे लॉस भी हो, तो क्या ए मुझे ये कह के पैसे वापस करेगा कि नहीं सर आपको तो पक्का लॉस ही होने वाला था, तो ये लीजिए 90 रुपए? नहीं, चाहे जो भी हो वो मुझे एक्स्ट्रा ही देंगे. तो ये एक्स्ट्रा एक्सेसिव इंटरेस्ट क्यों लगता है. सबसे पहले ये बात समझिए, जब भी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे आपका घर या आपकी गाड़ी, जब आप किसी थर्ड पर्सन को देते हो किसी पीरियड के लिए, तो आप उससे क्या करते हो, रेंट लेते हो. ये जो आप रेंट क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कोई और एंजॉय कर रहा है उस पीरियड के लिए, तो इसीलिए आप उससे रेंट लेते हो. आपकी प्रॉपर्टी आप खुद नहीं एंजॉय कर पा रहे हो. ठीक उसी तरह मेरा 100 रुपए, यहां पे द पर्सन ए
इंजॉय कर रहा है 1 मंथ के लिए, वो मेरा 100 रुपए है, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा हूं, वो यूज कर रहा है, तो वो मुझे रेंट पे करेगा, ये रेंट ही इंटरेस्ट है। तो वेरी गुड। अब इंटरेस्ट में दो तरीके का इंटरेस्ट है, आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मेन पर्पस यहां पे है ये समझना कि लॉजिकल अप्रोच क्या है इसमें। तो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर हम लोग वापस से वही चीज समझेंगे कि इसे फिर एप्टीट्यूड में क्यों डाला गया। तो नहीं हो, तो दो तरह का इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे 100 रुपया लिया 1 महीने के लिए, तो 10% इंटरेस्ट है 1 महीने का, तो 110 रुपए। 2 महीने में 120 रुपए, 3 महीने में 130 रुपए, हर महीने 10-10 रुपया इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो वो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। या नहीं तो अगर हम कंपाउंड में इसको समझें, 100 रुपया उसने लिया, ए ने लिया 1 महीने के लिए, 1 महीने का कितना उसे वापस करना था, 110। लेकिन क्योंकि वो 1 महीने में मुझे 110 रुपए नहीं दिया, तो नेक्स्ट मंथ क्या करेगा, वो 110 रुपए का 10% इंटरेस्ट, मतलब मुझे 11 रुपए देगा। तो सेकेंड मंथ में, जैसे फर्स्ट मंथ में अगर हम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले हम कंपेयर करते हैं। पर्सन ए मेरे पास 100 रुपए लिया एट 10% इंटरेस्ट पर मंथ, हर महीने 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट रेट है पर मंथ। ओके, तो 100 रुपए लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, 100 रुपए प्रिंसिपल हो गया, 1 महीने का इंटरेस्ट 10 रुपए हो गए 10%, 2 महीने का इंटरेस्ट एक और 10 रुपए, मतलब 2 महीने के एंडिंग में वो मुझे कितना देगा, 120 रुपए। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, वो 100 रुपए लिया, 1 महीने के एंडिंग में कितना देना था उसको, 110 रुपीस। क्योंकि वो मुझे 110 रुपए नहीं दिया, तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, 110 रुपए का 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 110 रुपए का 10% कितना होता है, 11 रुपए और लगेगा, मतलब वो मुझे 121 रुपए देगा। यहां पे मुझे 120 मिल रहा है, यहां पे 121 मिल रहा है। ये कंपाउंड है, ये सिंपल है। मैं आपको बता दूं, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, एनी मनी लेंडर, एनी बैंक, हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ किताबों में है। यहां तक कि माय डियर फ्रेंड, हमारा पॉपुलेशन भी कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं। तो चलिए पहले फॉर्मूलाज देखते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि इसे फिर एप्टीट्यूड में क्यों डाला गया, जब ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैथ्स है। ये चीज हम लोग समझेंगे। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं। आई थिंक आप सबको ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। पहले सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वेरी गुड, TRP बाय 100। कुछ लोग इसे PTR बोलते हैं, कुछ लोग इसे RTP बोलते हैं। मेरा फेवरेट है TRP, मैं TRP बोलूंगा। तो जो भी हो माय डियर फ्रेंड, P यहां पे प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है, और बाय 100 इसलिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज में होता है। ओके, तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे अमाउंट का फॉर्मूला चाहिए, मान लेते हैं कि मुझे अमाउंट का फॉर्मूला चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दोनों तरफ, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि अमाउंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं दोनों तरफ P ऐड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, और राइट हैंड साइड में अगर मैं प्लस P करूं तो P कॉमन हो गया। ओके, तो बचेगा क्या, यहां पे 1 प्लस TR बाय 100। इसे मैं आपको रेड फॉन्ट में लिख देता हूं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहे। P इंटू 1 प्लस TR बाय 100, यह है आपका अमाउंट का फॉर्मूला, यह है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है, दोनों तरफ हमने इंटरेस्ट में दोनों तरफ P ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, राइट हैंड साइड में आपको वो बन गया, राइट हैंड साइड में इट गॉट इट एज P इंटू 1 प्लस TR बाय 100। ओके, P हमने कॉमन ले लिया जो प्लस P किया था। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर ऑफ N, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला किसका है, अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना होगा, दोनों तरफ प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में जब आप माइनस P कीजिएगा तो ये आपको क्या बनेगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला
P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर ऑफ N माइनस 1। वो जो माइनस P था वो भी P मैंने कॉमन ले लिया। ओके तो ये तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला है। कुछ और चीजें यहां पे n क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि हम लोग वहां पे टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां n क्यों लिख रखा है हमने? तो n मैं बता दूं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज एडेड। नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज एडेड। जैसे मान लीजिए टाइम की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3 इयर्स, ओके 3 साल, और इन्होंने ये मेंशन किया है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल में एक बार। तो 3 साल में जब अगर एनुअली है तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू आपको 3 रहेगी, क्योंकि 3 साल में 3 बार ऐड होगा। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो साल में कितनी बार? 2 बार। तो 3 साल में कितनी बार? 6 बार। तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। और वही अगर दिया होता कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया कि हर 3 महीने में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो साल में 4 बार ऐड होगा, तो 3 साल में कितनी बार ऐड होगा? 12 बार। मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 12। n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज एडेड। तो नहीं हो, अब हम लोग समझते हैं कि इसी फॉर्मूला से और भी फर्दर फॉर्मूलाज भी डिराइव किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, इससे आगे और भी फॉर्मूलाज हम लोग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का हमें एक फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला तो हम लोग बना लेंगे, लॉजिकल अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा क्यों इस टॉपिक को आपको डाला गया एप्टीट्यूड में। पहले फॉर्मूला बेस्ड समझ लेते हैं, तब आगे जब हम लोग फॉर्मूला और एप्टीट्यूड दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि किससे हमें तुरंत आंसर आ रहा है। ओके तो नहीं हो, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए हमें 2 पीरियड का डिफरेंस चाहिए, या मैं ये कहूं कि 2 इयर्स का डिफरेंस चाहिए। हमें 2 पीरियड या 2 इयर्स का डिफरेंस चाहिए, फॉर्मूला बनाना है हमें। अब माय डियर फ्रेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें पता करना है। कैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट तो ज्यादा होगा, ओके तो ये हमें पता करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला क्या देखा? कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर ऑफ N, और हमने मान लिया है N की वैल्यू एज 2 इयर्स। ओके तो पावर 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस TR बाय 100। T मतलब टाइम की वैल्यू 2 इयर्स, R 2R बाय 100। अब इसमें अगर हम P कॉमन ले लें तो यहां पे क्या बचेगा? A प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस B का स्क्वायर मतलब R बाय 100 का स्क्वायर प्लस 2AB मतलब प्लस 2R बाय 100। ये हमें यहां पे बचा। अब वहां वाला P कॉमन लेने के बाद वहां पे क्या है? ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस 2R बाय 100। ओके अब यहां पे ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, प्लस 2R बाय 100 माइनस 2R बाय 100 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया? इट इज P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फॉर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, ऐसे हम डिफरेंट और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। लेकिन main purpose of this video is, this class is to make you understand why this topic was brought into aptitude। अगर ये completely formula based है तो इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पे आप एक क्वेश्चन देखिए, an investment triples itself in 10 years, in how many years it will be 9 times itself। देखिए हम समझेंगे कैसे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कि हेडिंग दिया रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट 5 क्वेश्चन, ऐसा तो हेडिंग नहीं दिया रहता है। मान लीजिए पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कंपाउंड वर्ड यूज नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट इट इज सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, am I right? तो कहीं भी कंपाउंड वर्ड का उपयोग नहीं है यहां पे, तो बाय डिफॉल्ट ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या देख रखा है? एन इन्वेस्टमेंट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 10 इयर्स। 10 इयर्स 10 साल में 3 गुना हो जाता है, इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो जाता है, प्रिंसिपल 3 टाइम्स प्रिंसिपल बन जाता है। इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 9 टाइम्स इटसेल्फ। तो 9 गुना कितने समय में होगा, कितने इयर्स में होगा? तो माय डियर फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये मत कहिएगा कि सर 3 गुना होने के लिए 10 साल, 9 गुना होने के लिए 30 साल, इतना भी सिंपल नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट इज नॉट दैट सिंपल। ओके तो चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें लॉजिकल अप्रोच क्या है।
फॉर्मूला के बेस पे सॉर्ट आउट करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट ट्रिपल इटसेल्फ, हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस टी आर बाय 100, यही है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का। अमाउंट की जगह इन्होंने दे रखा है, अमाउंट क्या बन जा रहा है 3 टाइम्स प्रिंसिपल, तो हमने प्लेस कर दिया फॉर्मूला में 3p इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस टी आर बाय 100, टाइम की वैल्यू 10 ईयर्स है तो 10 आर बाय 100। ओके, इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो इस इक्वेशन में पी पी कैंसिल हो गया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 3 - 1 2 इज इक्वल टू ये 10 1 जा 10 10 जा तो आर बाय 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें 9 टाइम्स इटसेल्फ बनाना है, 9 गुना बनाना है, तो चलिए फिर से इसी फॉर्मूला में प्लेस करते हैं हम लोग। अब अमाउंट की जगह हमें 9p बनाना है, 9p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता है, टाइम ही हमें पता करना है, तो टी को हमने वैसे ही लिख दिया। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है क्या है वो 20%, तो टी इंटू 20 बाय 100, पी और पी कैंसिल हो गए, 9 - 1 8 इज इक्वल टू 21 जा 25 जा मतलब टी बाय 5, तो टाइम की वैल्यू क्या हो गई 8 5 जा 40 ईयर्स, 40 साल में ये 9 टाइम्स इटसेल्फ होगा। ये फॉर्मूला बेस पे हमने इतना बना लिया, वेरी गुड। फिर इसे एप्टीट्यूड में क्यों डाला गया अगर ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है? चलिए एक बात को समझिए, अभी हम लोग जो प्रीवियस एग्जांपल देख रहे थे कि ए ने मुझसे 100 रुपए लिए, ओके, 1 महीने का इंटरेस्ट क्या था 10 रुपए, 2 महीने का 20 रुपए, 3 महीने 30 रुपए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, am I right? इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं है, 100 रुपया वैसे ही है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो इतना सब करने की आपको जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल आप इसको समझ सकते हैं वेरी इजीली। देखिए अमाउंट क्या बन रहा है 3 टाइम्स प्रिंसिपल बन रहा है, am I right? 3 टाइम्स प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है कितने साल में, 10 साल में, 10 ईयर्स में 3 टाइम्स प्रिंसिपल इतना अमाउंट बन रहा है। अब देखिए इस बात को समझिए कि 3p में जो है ये पूरा अमाउंट है, मतलब इसमें ओरिजिनल वाला पैसा प्रिंसिपल भी है प्लस इंटरेस्ट भी है। तो मान लीजिए यहां पे 100 रुपए वैसे ही था, 100 रुपए में कोई बदलाव नहीं है, चेंजेस सिर्फ इंटरेस्ट में आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे 100 रुपए वो जो था वहां पे ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल वो हटा देते हैं, क्योंकि हमें बदलाव सिर्फ इंटरेस्ट में देखना है। 1 महीने का 10 रुपए, 2 महीने का 20, 3 महीने का 30, यहां पे 1p को हटा दीजिए। 1p का मतलब ओरिजिनल वाला जो पैसा था इन्वेस्टमेंट था, 1p हटा देते हैं तो इसमें इंटरेस्ट क्या होगा 2p इंटरेस्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं 2p इंटरेस्ट आ रहा है 10 साल में, इंस्टेड ऑफ सेइंग 3p अमाउंट बन रहा है 10 साल में, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 2p इंटरेस्ट आता है 10 साल में। अब इनको क्या करना है, अमाउंट कितना बनाना है, अमाउंट बनाना है 9p। 9p क्या है, टोटल अमाउंट है, इसमें 1p ओरिजिनल वाला पैसा है, तो 1p हटा दीजिए तो इसमें इंटरेस्ट कितना होगा 8p। अब आपको बस इंटरेस्ट में ही बदलाव देखने हैं, सिर्फ इंटरेस्ट में, ओके। 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा, इंटू 4, तो इधर भी क्या करेंगे इंटू 4 करेंगे, 10 4 जा 40 ईयर्स में हमें 8p इंटरेस्ट आएगा, मतलब 9p अमाउंट बनेगा, एज सिंपल एज दैट। ओरिजिनल पैसे को अलग करके चेंजेस हमें सिर्फ इंटरेस्ट में देखना है। 1p मैंने हटा दिया और बाकी जो भी है, यहां पे भी 1p हटाया अमाउंट में, यहां भी 1p हटाया, बदलाव मैंने सिर्फ इंटरेस्ट में देखा। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो उसी तरह 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर मल्टीप्लाई कर दिए। तो माय डियर फ्रेंड ये सब लॉजिकल अप्रोच है जहां पे आप सेकंड्स में आंसर बता सकते हैं। अगर आप एप्टीट्यूड का मतलब है क्वेश्चन समझ गए तो आप आंसर बता सकते हैं इफ रिक्वायर्ड विदाउट यूजिंग पेन पेपर कैलकुलेटर। वो एप्टीट्यूड का फ्लेवर आपको अगर समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप विद इन सेकेंड्स आप आंसर कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स, नो यू नीड टू यूज फॉर्मूलाज। फॉर्मूला से भी जल्दी आपको एप्टीट्यूड सॉर्ट आउट करता है। चलिए थोड़ा मैं लॉजिक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के भी लिए भी बता देता हूं। ओके, पहले एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टमेंट क्वाड्रुपल्स इटसेल्फ इन 15 years, देन इन हाउ मेनी years इट वुड बी 10 times itself। क्वाड्रुपल्स इटसेल्फ, क्वाड्रुपल का मतलब 4 गुना होता है। अब जल्दी से आप आंसर करके बताइए, आप मैथ्स यूज कर रहे हो या एप्टीट्यूड यूज कर रहे हो, इससे हमें मतलब नहीं है, मुझे 30 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो 30 सेकंड में कैसे करेंगे, एप्टीट्यूड से ही करेंगे। तो वेरी सिंपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करने की जरूरत नहीं है। एन इन्वेस्टमेंट क्वाड्रुपल्स इटसेल्फ मतलब 4p अमाउंट बन रहा है,
4p अमाउंट कितने साल में बन रहा है? 15 साल में, 15 ईयर्स में। 1p हटा देते हैं तो इसमें इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट होगा 3p। तो 3p इंटरेस्ट आ रहा है हमें 15 साल में। इंस्टेड ऑफ सेइंग 4p अमाउंट बन रहा है 15 साल में, 3p इंटरेस्ट आ रहा है 15 साल में। अब इन्होंने पूछा देन हाउ मेनी इयर्स इट वुड टेक टू बिकम 10 टाइम्स इटसेल्फ। 10 गुना बनना है, मतलब अब अमाउंट बनना है 10p। ओके, 10p क्या है? अमाउंट है। 1p हटा दीजिए ओरिजिनल वाला पैसा, तो इसमें इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इसमें 9p है। अब ये इंटरेस्ट 3p, ये इंटरेस्ट 9p। 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 9 आएगा, इंटू 3। तो इधर भी क्या करेंगे? इंटू 3 करेंगे। तो 15 3 45 ईयर्स में हमें 9p इंटरेस्ट आएगा, मतलब 10p अमाउंट बनेगा। 45 साल हमारा आंसर। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पता भी नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, यही सारे लॉजिकल अप्रोच बैंक एम्प्लॉयज यूज करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि क्लाइंट्स वेट करते होते हैं। पैसे इन्वेस्टमेंट, पैसे बैंक में रखने के लिए इंतजार करते हैं, कब डबल करोगे, कब ट्रिपल करोगे, तुरंत बताओ। तो उनको इतना समय नहीं होता है कि वो कुछ लॉजिकल फॉर्मूला यूज करें, तो लॉजिकल अप्रोच ही यूज करते हैं, वो एप्टीट्यूड यूज करते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो एप्टीट्यूड आपको इंस्टेंट आंसर दे सकता है। एक और लॉजिक मैं आपको कंपाउंड का भी बता देता हूं। बाकी जब हम लोग पूरी टॉपिक पढ़ेंगे, जब आप गेट वाला द्रोणा बैच ज्वाइन करोगे तो पूरी टॉपिक पढ़ेंगे, तो एक एक चीज को हम लोग सेकंड्स में सॉर्ट आउट करेंगे। हर तरह के क्वेश्चन का लॉजिकल अप्रोच हम लोग कंपेयर करेंगे। जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो कितना समय लगा, जब हम एप्टीट्यूड या लॉजिकल अप्रोच यूज कर रहे थे, समझ के आंसर कर रहे थे, तो कितना समय लगा। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखता हूं और जल्दी से मैं इसका बता देता हूं। एन इन्वेस्टमेंट डबल्स इटसेल्फ इन 6 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बी 16 टाइम इटसेल्फ। देखिए फॉर्मूला तो है ही, लेकिन लॉजिकल अप्रोच क्या है? कुछ पैसा है, जब एक पैसा मैं बैंक में जमा करता हूं 6 साल के लिए, तो 6 साल में बैंक उसको क्या करती है? डबल कर देती है। मान लीजिए मैंने p पैसा जमा किया बैंक में, तो बैंक ने क्या किया? p को 2p बना दिया। कितने साल में? 6 साल में, 6 years में। अब मान लेते हैं कि ये 2p पैसा फिर मैंने बैंक में 6 साल के लिए छोड़ दिया, तो बैंक क्या करेगी? ये 2p का डबल कर देगी। 2p का डबल मतलब 4p करेगी, एक और 6 साल मतलब टोटल 12 साल हो गए। मान लीजिए ये 4p पैसा फिर से मैं बैंक में छोड़ देता हूं एक और 6 साल के लिए, तो बैंक क्या करेगी? इसका डबल करेगी। इसका डबल मतलब 8p, एक और 6 साल में मतलब 18 साल में। और अगर ये 8p पैसा मैं फिर से बैंक में डाल के रखता हूं 6 साल के लिए, तो 6 years में बैंक इसका डबल करेगी। इसका डबल मतलब 16p, एक और 6 साल में मतलब कितने साल में? 24 years में। तो ये 16p होगा 24 years में। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इधर इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4। जितना आपको अमाउंट में पावर्स चल रहे हैं, उतना ही आपको पीरियड में मल्टीप्लीकेशन चल रहे हैं। यह क्यों हो रहा है? इसका वजह भी मैं आपको बता सकता हूं। आपको पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर ऑफ n। ये फॉर्मूला है। अमाउंट की जगह जस्ट प्लेस किया हमने, ये 2p बन गया, इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर ऑफ n। कितने साल में बना? 6 साल में बना, तो n की जगह हमने 6 लिख दिया। अब p और p तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको चाहिए फिर दोनों तरफ p मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन मेन आपको करना क्या है? ये 2 को कितना बनाना है? 16 बनाना है। तो 2 को 16 बनाने के लिए कितना पावर लगाइएगा? पावर 4। जब आप लेफ्ट हैंड साइड पावर 4 लगाएगा तो राइट हैंड साइड में भी आपको पावर 4 लगाना होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 का पावर 4 तो 16 बन जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में पावर टू द पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। इसीलिए आपको पीरियड के साइड में मल्टीप्लीकेशन चल रहे हैं, इधर पावर्स चल रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? रिवर्स मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इधर मल्टीप्लाई करके उधर पावर्स कर दिए। आपको रीजन पता है आप क्यों कर रहे हो ऐसा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आर यू गेटिंग मी? कहने का मतलब ये सब कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हमें 3p आ रहा है। 3p अमाउंट आ रहा है कितने साल में? इन्होंने 3p भी नहीं है, ये कितना है आपका? 2p ही है। ओके, तो अमाउंट हमें 2p आ रहा है, कितने साल में आ रहा है? 6 years में। अब इनको अमाउंट कितना बनाना है? अमाउंट बनाना है 16p। ओके, तो यहां पे आप इंटरेस्ट सेपरेट करके वो सिंपल इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट मत यूज कीजिए। 2 में कितना पावर लगाएंगे कि 16 बनेगा? पावर 4। तो इधर हम क्या करेंगे? इंटू 4 करेंगे।
तो 6 4 जा 24 ईयर्स। क्लियर, सिंपल। एनी हाउ, इस तरह के बहुत सारे लॉजिकल अप्रोच है। एक क्वेश्चन आप ट्राई करें, ये आपकी स्क्रीन पे है। एन इन्वेस्टमेंट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 11 ईयर्स, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बी 27 टाइम्स इटसेल्फ। 3 गुना होने के लिए 11 साल लग रहा है, तो 27 गुना होने के लिए कितना साल लगेगा? जो लोग 33 साल बोल रहे हैं, जो लोग 33 साल बोल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि फ्लो में मत कीजिएगा। कहीं भी कंपाउंड वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ओके, तो क्योंकि कहीं भी कंपाउंड वर्ड का उपयोग नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे। यहां पे 3 टाइम्स प्रिंसिपल, ये अमाउंट हमें बन रहा है कितने साल में? 11 साल में। कहीं भी कंपाउंड वर्ड यूज नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, 1p अलग कर देते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट कितना है? 2p इंटरेस्ट हमें आ रहा है 11 साल में। अब इन्होंने पूछ रखा है कि हमें 27p बनाना है। अमाउंट कितना बनना चाहिए? 27p बनना चाहिए। इसमें 1p हटा दीजिए। इंटरेस्ट कितना है इसमें? ऑब्वियस 26p इंटरेस्ट है। 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 26 आएगा इंटू 13, तो इधर भी इंटू 13, मतलब 11 इंटू 13, 143 ईयर्स में हमें 26p इंटरेस्ट आएगा, यानी तो मैं कह सकता हूं 27p अमाउंट आएगा। दिस इज माय आंसर, क्योंकि कहीं भी कंपाउंड वर्ड यूज नहीं किया गया, तो यह सिंपल इंटरेस्ट है। अगर कंपाउंड वर्ड का उपयोग होता, अगर यहां पे कहीं भी कंपाउंडेड वर्ड यूज हुआ होता, तब हम बोल सकते थे, तब हमारा लॉजिक क्या होता कि अमाउंट हमें 3p आ रहा है कितने साल में? 11 साल में। इन्होंने क्या पूछ रखा है? अमाउंट कितना बनना चाहिए? 27p। 3 में कितना पावर लगाएंगे कि 27 होगा? पावर 3 लगाएंगे, तो इधर क्या करेंगे? इंटू 3 करेंगे, तो 11 3 जा 33 ईयर्स। ओके, तब हमारा 33 ईयर्स आंसर होता, लेकिन मैंने कंपाउंड वर्ड यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये सिंपल इंटरेस्ट ये वाला यहां पे यूज होगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन, अब जो मैं क्वेश्चन स्लाइड पे प्ले करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप गूगल में भी टाइप करके देखिए, गूगल का एक्सप्लेनेशन भी मैं यहां पे स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो पूरा एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी क्या उनको करेक्ट आंसर आया या नहीं आया, वो हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ए सम ऑफ 12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब कोई भी 12,000 ही नहीं, कोई भी पैसा आप बैंक में रखो, 5 साल में वो डबल कर देती है। तो पूछ रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम हाउ मच। ओके, हम फॉर्मूला नेक्स्ट स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊंगा, फॉर्मूला यूज करके क्या किया गया है उसे। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट को समझे हैं, जो एप्टीट्यूड, जो लॉजिकल अप्रोच समझे, उससे देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सिंपल बात है, यहां पे 5 साल में ये डबल हो रहा है, मतलब P यहां पे 12,000 है नो डाउट, लेकिन हम उसे P मान के चलते हैं। P जो है वो 2P हो रहा है कितने साल में? 5 ईयर्स में। ओके, अब यहां पे ये लोग अमाउंट नहीं पूछ रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि ये 20 साल में कितना होगा, मतलब यहां पे हमें 20 ईयर्स बनाना है। हमें पीरियड में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जितना इधर मल्टीप्लीकेशन उतना इधर पावर्स होगा। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा? इंटू 4 करेंगे, तो इधर हमें क्या करना होगा? पावर 4 लगाना होगा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 16p, मतलब 16 टाइम्स प्रिंसिपल होगा 20 साल में। एम राइट? अब P की वैल्यू आपको पता है कितना है? 12,000, तो 16 इंटू 12,000 इतना बनेगा। तो वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये 3 0 हो गया, और 16 2 जा 32 2 3, यहां पे 16 1 जा 16 प्लस 3 19, मतलब 1,92,000 1,92,000 ये बनेगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब इसको देखते हैं, इन्होंने जब फॉर्मूला यूज किया तो क्या आया। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बस आप देख लीजिए कि फॉर्मूला यूज करके क्या आया है। फॉर्मूला यूज करके यहां पे ये सारी चीजें पूरा यूज करके इन्होंने 1,91,671 रुपया सम 47 पैसा ऐसा इन्होंने आंसर दिया है माय डियर फ्रेंड। अब ये यहां पे जबकि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1,92,000 एग्जैक्ट, इन्होंने आंसर क्या दे दिया फॉर्मूला लिख के? 1,91,000। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, मैं आपको बता दूं, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर जो था हमारा पहले वाला था। अप्रॉक्सीमेट ये इसलिए है क्योंकि यहां पे लॉग यूज करके कुछ डेसिमल वैल्यूज लिखा गया है,
और डेसिमल अप्रॉक्सीमेट में 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक। तो सारे कैलकुलेशन करते करते लास्ट तक वो 1,91,000 चेंज ही बच गया, जबकि वो 1,92,000 होगा। तो माय डियर फ्रेंड, एप्टीट्यूड से समझना और ये फॉर्मूला से समझना, दोनों को डिफरेंशिएट करके देखिए कौन सा आपके लिए आसान होता है। ईच एंड एवरी टॉपिक में हम बता दें कि हम लोग ये चीज को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। क्वेश्चन समझे तो हम आंसर बता सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ये स्लाइड भी नहीं होगा, आपके पास फॉर्मूला भी नहीं होगा, आपके पास पेन पेपर भी नहीं होगा, लेकिन विद इन सेकेंड्स आप आंसर बताओगे, सर इसका सेकेंड ऑप्शन लिख लीजिए, इसका नन ऑफ दीज लिख लीजिए। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज हमें सीखना है और वो आप कर सकते हो, बिलीव इन योरसेल्फ। तो होप यू हैव एंजॉयड द टुडे सेशन। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ऑन द गेट वाला द्रोणा बैच। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड, थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।